Hello students, this is Vijayalakshmi here. I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. I have taught you the complete present tense as well as the simple past tense. In today's video, I will teach you the past continuous tense. We will talk about its structure as well as its uses. आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को कौन सी फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कहाँ पे करना है और कब करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज टास्क। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, सो सी आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। He was watering the plants. I was reading a book. You were teaching they were talking. Okay students, so let's analyze these all four sentences. In the first sentence, okay, he is the subject here. What is he here? Subject. And here I used two helping verbs in all these four sentences. In this sentence I used the helping verb was. Here also I use was. यहाँ पे मैंने were use किया, यहाँ पे भी मैंने were use किया. Okay, so with the singular we use was and with the plural we use were. Clear students? Do not use were with I in the simple past, in the past continuous tense. Clear? We use it in the imaginary present. Clear? जैसा कि मैंने कल आपको imaginary प्रेजेंट का एक रूल बताया था पास्ट, सिंपल पास्ट के यूज में। इफ आई वर द प्रिंसिपल, ओके, देयर वी वुड यूज वर विद आई। अदरवाइज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आई के साथ वॉज यूज करेंगे। क्लियर? वॉज एंड वर ये दोनों क्या है? पास्ट फॉर्म है किसकी? वर्ब बी की। बी वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। क्लियर? तो हमने इसका पास्ट टेंस यूज करना था क्योंकि हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज और वर। क्लियर? सो ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटर मेन वर्ब अलॉन्ग विथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। वह पौधों को पानी दे रहा था। क्लियर? ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। क्लियर? You were teaching, आप पढ़ा रहे थे। They were talking, वो बातें कर रहे थे। Okay, so these all are the affirmative sentences. Now let's proceed towards the negative structure. अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। I am writing here one sentence in affirmative form. He was watering the plants. This is affirmative sentence. Okay, इसमें नेगेटिव बात नहीं हुई, ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही कोई क्वेश्चन किया गया है, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है सेंटेंस की? अफर्मेटिव। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। He was, where to put not? In between the helping and the main verb. हम not कहाँ पे लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में, मिडल में, बीच में। क्लियर? ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ आई हैव टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगी।
ओके, was he watering the plants? क्या वो पौधों को पानी दे रहा था? Was he watering the plants? So where I used was here at the initial point in the sentence. Okay students, so it is very simple to change an affirmative sentence into negative as well as into interrogative. In the negative, जब हमने negative sentence बनाना है तो हम not कहाँ पे लगाएंगे? helping verb और main verb के center में. और अगर हमने इसको interrogative में change करना है, questioning में change करना है, तब हम was कहाँ पे लगाएंगे? was और were according to the subject कहाँ पे लगेंगे? sentence के बिल्कुल beginning पे. Clear students? Okay. So let's proceed towards its uses. Okay, the first use of past continuous tense is to describe an action that was going on during a period in the past. Okay, for example, this is the timeline, this is the present, and this is the past. Clear? So past continuous tense denotes the continuity of an action in the past. Past continuous tense हम यूज कब करते हैं? जब हमने किसी काम की continuity को बताना हो कि past में ये जो काम था वो चल रहा था, हो रहा था. Okay? For example, if I say at 8 p.m. I was sleeping. Okay. For example, you received a call in the morning next day आपके फ्रेंड ने अगले दिन आपको सुबह फ़ोन किया और पूछा कि कल मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और तुमने फ़ोन उठाया क्यों नहीं? तो आप क्या बोलोगे? कितने बजे तुमने मुझे फ़ोन किया? एट व्हाट टाइम यू मेड मी कॉल? देन उसने बोला कि लगभग 8 बजे. तो आप क्या बोलोगे? 8 बजे तो मैं सो रहा था. मीन टू से आपने स्पेसिफिक 8 बजे ही सोना शुरू नहीं किया. 8 बजे तो आप सो रहे थे, उस टाइम तो आप सो रहे थे. मीन टू से आपने सोना कब शुरू किया? 8 बजे से पहले. हो सकता है 7:30 आप सो गए हों, 7:30 पे आप सो गए हों, हो सकता है आप 7:45 पे सोए हों. ठीक है, तो आप आपने इससे पहले ड्यूरिंग अ पीरियड, मीन टू से यहाँ पे मान लो 8 बजे हैं यहाँ, तब आपने सोना कब शुरू किया? मे बी यहाँ पे 7:45 पे, और इसके बाद भी आप सो रहे थे कुछ टाइम तक. क्लियर? सो वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब कहाँ पे यूज करते हैं? एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो एक टाइम पीरियड में चल रहा था, पास्ट में. क्लियर? एट 8 p.m. I was sleeping. Okay? Okay. Now let's proceed towards its next uses, that is interrupted long action in the past. For example, we all were having dinner when he arrived. एक लॉन्ग एक्शन चल रहा था, वो इंटरप्ट हुआ. क्लियर? किस चीज को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे? उस लॉन्ग एक्शन को बताने के लिए जो इंटरप्ट हुआ. इंटरप्ट मीन जिसमें बाधा पड़ी, जो बीच में रुका, चल रहा था लेकिन किसी के आने से उसमें बाधा पड़ी, वो इंटरप्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल वर हैविंग डिनर व्हेन ही अराइव्ड. हम सब डिनर कर रहे थे जब वो आया. मीन टू से उसके आने से आपका जो डिनर करने का प्रोसेस था वो इंटरप्ट हुआ. क्लियर? लॉन्ग एक्शन चल रहा था, आपने कुछ टाइम पहले खाना खाना शुरू किया था, आप जब वो आपके घर आया उस टाइम खाना खा रहे थे. ये प्रोसीजर क्या हो रहा था? चल रहा था.
लेकिन उसके आने ने उसको इंटरप्ट कर दिया। ओके, सो टू डिनोट द लॉन्ग एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड, वो लॉन्ग एक्शन जिसको जो इंटरप्ट हुआ है किसी दूसरे एक्शन के कारण जो हुआ। ओके, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक। क्लियर? और एक बात और जो आपने ध्यान में रखनी है, वन थिंग दैट टू बी केप्ट इन माइंड, दैट इज this is the long action and this is the shorter one. So to denote the shorter action we will use here past simple. Okay, and here we will use past continuous tense. Okay students, for example, when I was sleeping the bell rang. Now look at this example. अब इस example को understand करो. When I was sleeping the bell rang. आप क्या कर रहे थे? लॉन्ग एक्शन कौन सा चल रहा था? आप सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपकी नींद खराब हुई। किसने इंटरप्ट किया आपकी नींद को? रिंग, जब बेल किसी ने रैंग की। क्लियर? किसी ने बेल बजाई आपके आगे घर की, तब आपका जो सोने का जो काम चल रहा था, जो एक्टिविटी चल रही थी, एक्शन चल रहा था सोने का, वो क्या हुआ? इंटरप्ट। सो दिस इज द लॉन्गर एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड इवन continued after that specific time. Clear? There we used past continuous tense. ये past continuous tense है बेटा, and this is the simple past. I hope that you all are getting. मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब इसको समझ रहे हो. Okay. So बेटा you can give me your suggestions by giving your comments कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं, समझ में आ रही हैं. ओके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. The next is we use past continuous tense to denote the repeated action that was irritable also. अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था उसमें भी ये हमने यूजेस किया था. ओके, that he is always speaking absurd. Okay, he is always speaking ill. Clear? तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो बार बार होते थे पास्ट में और आपको वो के लिए वो इरिटेबल थे, जो आपको अच्छे नहीं लगते थे. फॉर एग्जाम्पल, I left that company because the boss was always shouting. अब इस एग्जाम्पल को एनालाइज करो. I left that company, मैंने वो कंपनी छोड़ दी, मैंने उस कंपनी में काम करना छोड़ दिया. क्यों? Because the boss was always shouting. क्योंकि बॉस का जो रिपीटेड एक्शन था वो मेरे लिए क्या था? इरिटेबल था. वो बात बात पे शाउट करता था. रिपीटेड एक्शन मतलब बॉस की ये आदत थी कि वो बार बार शाउट करता था, और शाउट करना तो किसी को पसंद ही नहीं है. ओके, तो ये क्या था? इरिटेबल एक्शन था आपके लिए. क्लियर? सो टू डिनोट द रिपीटेड एंड इरिटेबल एक्शन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो रिपीटेड एक्शन, पास्ट का रिपीटेड एक्शन जो इरिटेबल था उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स लास्ट यूजेस, दैट इज टू ऑनगोइंग पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट. ओके, कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं. सपोज आपके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, ओके, और आपको कॉल करते हैं जानने के लिए कि बच्चों को घर पे छोड़ा था, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं. तो आपके पापा ने पूछा कि बेटा यस क्या कर रहे थे? तो आपने बोला पापा मैं तो सो रही थी और मुकुल पढ़ रहा था. मतलब उस टाइम में दो एक्शन हो रहे थे पैरेलल. आप सो रहे थे, आपका भाई पढ़ रहा था.
Okay, so to denote two parallel actions in the past, we use past continuous tense. Okay, for example, I was taking rest and my brother was playing outside. दो एक्शन हुए थे, दो एक्शन चल रहे थे एक ही टाइम पे. आपने बोला आई वॉज टेकिंग रेस्ट, मैं तो रेस्ट कर रही थी और मेरा ब्रदर बाहर खेल रहा था. एट द सेम टाइम जब दो एक्शन इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे चल रहे थे, उसी टाइम दोनों कॉन्टिन्यू थे, तो उन दोनों एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, आई फील that you all got today's lesson. You all well understood today's topic, the past continuous tense. If you like my video, if you understand me well, then press the like button, subscribe my channel, share the videos, share the link with your friends and comment below. Thank you very much.